I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to biology class. So today we will start our 9th chapter from biology, that is useful microorganisms, animals and plants. First of all, useful microorganisms. There is a large diversity of living things present around us. हमारे large diversity में living things present है हमारे surroundings में. Although most of them are visible with our eyes, there are many other are invisible and can only be seen under a microscope. कुछ कुछ ऐसे हैं जो हमको अपनी आई से विजिबल दिखते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनविजिबल हैं, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है टू सी देम. It is due to their minute almost invisible size, their organisms are called microorganism. जो ये ऑर्गेनिज्म है इनविजिबल साइज के होते हैं, इसलिए उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना वो वर्ल्ड में हर जगह है. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर द सी एट द बॉटम, इफ़ यू आर टॉकिंग फ्रॉम अंटार्कटिका टू अंटार्कटिका एंड अप टू द पीक ऑफ द माउंटेन, दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑकर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. These organisms found in air, water, soil and even inside the body of being living organisms. या living organisms की big living organisms की body में भी micro organisms होते हैं. They are even found in the mouth, intestine and feces और also inside the plant's body. Micro organisms बहुत small होते हैं, इनको हम म्यू से measure करते हैं, जिसको हम म्यू को इस तरीके से हम express करते हैं. Some useful microorganisms of life are bacteria, algae and fungi. ये useful microorganisms क्या हैं? Bacteria, algae and fungi. Let us important of this microorganisms in our lives. अब हम study करते हैं. First of all, we will study about useful microorganisms. Bacteria are used in the preparation of antibiotics. कुछ कुछ bacteria हैं जो कि antibiotics को preparation करने के लिए use होते हैं, जैसे streptomycin, chloromycin and terramycin. Vitamin B complex tableted are manufactured with the help of bacteria. Bacteria decompose करते हैं dead remains of plants and animals such as humus in soil. They are therefore are called natural scavenger और decomposers. इसको decomposers भी बोलते हैं क्योंकि वो decompose करते हैं dead plants और animals को. Some bacteria are found in root nodules. Root nodules में कुछ bacteria present होते हैं. They convert free atmospheric nitrogen into nitrous, for example rhizobium. Bacteria also found in milk. मिल्क में बैक्टीरिया होते हैं जो कि फर्मेंटेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चीज़ एंड कर्ड में हेल्प करते हैं. विनेगर इज मेड फ्रॉम शुगर सोल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया. विनेगर भी बनता है शुगर सोल्यूशन से क्योंकि उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. लैक्टिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड आर ऑल्सो ऑप्टेन बाई द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. से ये दोनों ऑप्टेन होते हैं. बैक्टीरिया ऑल्सो टेक पार्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए बैक्टीरिया का रिक्वायरमेंट होता है. दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन टैनिंग एंड रेटिंग. द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल स्किन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ लेदर इज कॉल्ड टैनिंग. जो ट्रीटमेंट करते हैं एनिमल स्किन का फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेदर. लेदर को प्रोडक्शन के लिए हम जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं उसको टैनिंग बोलते हैं. Separation of fiber from the long stem of fiber plants such as flax jute is called reddening of fiber. जब हम फाइबर को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द लॉन्ग स्टेम ऑफ फाइबर प्लांट की लॉन्ग स्टेम से जब हम सेपरेशन करते हैं फाइबर का, जिसको हम बोलते हैं फ्लैक्स जूट इज कॉल्ड रेटिंग ऑफ फाइबर. बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन टैबाको इंडस्ट्री. फ्लेवर्स के लिए यूज़ होता है बैक्टीरिया. टैबाको लिप्स में टेस्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. गोबर गैस प्लांट में जब हम काऊ डंग का यूज़ करते हैं वहाँ पर बैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से एक इन्फ्लेमेबल गैस प्रोड्यूस होती है जिसको हम मीथेन बोलते हैं. ये डोमेस्टिक कुकिंग के लिए यूज़ होती है. जो ये मीथेन गैस प्रोड्यूस होते हैं बाय द एक्शन ऑफ गोबर गैस प्लांट. गोबर गैस इन गोबर गैस प्लांट. द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ दिस सम एनिमल्स. जो डाइजेस्टिव जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में कुछ एनिमल्स जैसे काऊ हो गया, कैमल, शीप, उसमें बैक्टीरिया कंटेन होते हैं जो कि
cellulose of the plant into simple sugar so that it may be absorbed readily by them. ईजिली हमारी बॉडी में खाना एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में, काउ, कैमल और शीप में. The bacteria such as Escherichia coli are present in the alimentary canal of human being. जो Escherichia coli होते हैं वो जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं हमारी ह्यूमन बीइंग में, यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं ये जो बैक्टीरिया है. They also help in the production of vitamins. विटामिन्स का प्रोडक्शन भी करते हैं जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर है. बैक्टीरिया एंड फंगाई ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. जो बैक्टीरिया और फंगाई है ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करते हैं. सो दिस ऑल आर द यूजफुल बैक्टीरियाज. नाउ यूजफुल एल्गी. ग्रीन एल्गी रिलीज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन एल्गी होती है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे. एल्गी प्रेजेंट इन द वाटर एंड मेजर सोर्स ऑफ फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर. जो एल्गी है जो वाटर में प्रेजेंट होती है ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फूड है ऑर्गेनिजम्स का, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में रहते हैं. और फ्यू रेड एल्गी आर गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. जो फ्यू रेड एल्गीज होते हैं ये सोर्स ऑफ किसका सोर्स होता है, ये प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. A popular vegetable of Japan is prepared by Laminaria, a brown algae. It is also help kelp. It contains a large amount of minerals. जो ये रेड एल्गी है ये प्रोटीन होता है विटामिन और मिनरल्स का, जो जापान में प्रिपेयर होता है लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी, इसको हम कैल्प भी बोलते हैं. ये कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स. अगर ऑल्सो नोन एज चाइना ग्रास, इसको चाइना ग्रास भी बोलते हैं अगर को, इज ऑप्टेन फ्रॉम रेड एल्गी. रेड एल्गी से ये ऑप्टेन होता है. दिस प्रोडक्ट इज यूज इन द लेबोरेटरी फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए लेबोरेटरी में ये अगर का यूज होता है जिसको हम चाइना ग्रास भी बोलते हैं. एल्गी आर ऑल्सो यूज एज फूड बाय एनिमल्स. एनिमल्स के फूड के लिए भी एल्गी यूज होता है. मैनी सी वीड्स मेक वेरी यूजफुल फोडर्स. डायटम्स आर द काइंड ऑफ एल्गी फाउंड इन सी. जो डायटम्स हैं ऐसे काइंड ऑफ एल्गी है जो सी में फाउंड होते हैं. दे कंटेन सिलिका विच इज एक्सटेंसिवली यूज इन मेकिंग मेटल पॉलिश, पोर्सिलेन एंड टूथपेस्ट. जो कंटेन सिलिका कंटेन करते हैं ये जो एल्गी है सी में फाउंड होती है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मेटल पॉलिश बनाने के लिए, पोर्सिलेन डिशेस बनाने के लिए एंड टूथपेस्ट. मैनी मराइन एल्गी आर यूज फॉर बाय फार्मर फॉर सी कोस्ट एज मैन्योर. जो मराइन एल्गी है इसको फार्मर्स यूज़ करते हैं सी कोस्ट एज मैन्योर, एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं इस मराइन एल्गी को सी कोस्ट एरिया में. आयोडीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेमिनेरिया. जो आयोडीन कहाँ से मिलता है हमको, लेमिनेरिया से मिलता है. जो लेमिनेरिया क्या है, एक ब्राउन एल्गी है. जो हमने बात की थी जो पॉपुलर वेजिटेबल होता है जापान का वो भी लेमिनेरिया से प्रिपेयर होता है जिसको हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं. उसी से आयोडीन भी एक्सट्रैक्ट होता है. सीवीड्स ऑल्सो यील्ड ब्रोमीन, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसीटोन. एंड एंटीबायोटिक कॉल्ड क्लोरिलीन इज प्रिपेयर फ्रॉम क्लोरेला. सो दिस ऑल आर द यूजफुल एल्गी. Useful fungi. Mushrooms and morels are edible fungi used in delicious vegetable all over the world. जो mushrooms and morel एक edible fungi है जो कि delicious vegetables के लिए हम use करते हैं all over the world. आपने mushrooms खाए भी होंगे. Yeast is a fungus which mainly consists of carbohydrate, protein and fat. जो yeast एक ऐसा fungus है जो कि consist करता है carbohydrate, protein and fats. The large scale production of yeast एज फूड इज कॉल्ड माइक्रोबियल फार्मिंग. जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है ईस्ट से एज अ फूड इसको माइक्रोबियल फार्मिंग बोलते हैं. ईस्ट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन. ईस्ट इज यूज इन बेकरी एंड फॉर सिंथेसाइजिंग विटामिन B1. जो विटामिन ईस्ट है एक रिच सोर्स ऑफ विटामिन है. ईस्ट बेकरी में यूज़ करते हैं और सिंथेसाइज करने के लिए विटामिन B1. सम फंगाई सच एज कैल्विसिन हैव एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज. जो फंगाई है जैसे कैल्विसिन इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये यूज़फुल है हमारी बॉडी के लिए. अल्कोहल एंड अल्कोहलिक ड्रिंक आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन ऑफ सीरियल ऑफ ईस्ट. जो अल्कोहल और अल्कोहलिक ड्रिंक्स प्रोड्यूस होते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से. फर्मेंटेशन किसका करते हैं हम, सीरियल्स ऑफ बाय ईस्ट. सम स्पीशीज ऑफ पेनिसिलियम आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ चीज़. कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं पेनिसिलियम के जिसको हम चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होते हैं. Some of the saprophytic fungi act an organic matter
and make it soluble in the agriculture field, thus increase soil fertility, thus act as scavengers. सेप्रोफाइटिक फंगाई ये एक ऑर्गेनिक मैटर की तरह एक्ट करते हैं जिसको हम सॉल्यूब करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में और ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. मैनी ऑर्गेनिक एसिड सच एज ग्लूकोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड आर प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ फंगस, एस्परगिलस एंड पेनिसिलियम. बहुत सारे ऑर्गेनिक्स हैं जैसे कि ग्लूकोनिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड होता है, ये प्रिपेयर्ड होते हैं बाय फर्मेंटेशन ऑफ फंगस. कौन से फंगस का? एस्परगिलस एंड पेनिसिलियम फंगस के फर्मेंटेशन ऑफ फंगस का करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स. यूजफुल एनिमल्स वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.